today's current affairs is 19th January. These are the sources: PIB, AIR, down to earth. So the topics are one topic is from sugar cane. ठीक है, production has like increased a lot. Now they are saying कि we have attained self-sufficiency, or we have become self-sufficient in sugarcane production. So here we will cover everything related to sugarcane. What is FRP? You know what is MSP, minimum support price. When it comes to sugarcane, it is FRP, fair and remunerative prices. So we will cover all these things related to sugarcane. Second is National Level Steering Committee reviews overall progress of Atal Bhujal Yojana. So one scheme, very important scheme from exam point of view, Atal Bhujal Yojana. So this Yojana will cover under Ministry of Jal Shakti. Third is a new plateau type discovered from Maharashtra could prove to be a repository of information to study climate change effects on species survival. So here we will cover one topic, one environment topic, that is called biodiversity hotspots. This is a static environment topic. ठीक है? So this is biodiversity hotspots, and also will cover something related to that, one fund, CEPF, that is Critical Ecosystem Partnership Fund. All are required for prelims, state exams and UPSC. Next we have a news of Chabahar Port. You know what is Chabahar Port? ठीक है? Chabahar Port and INSTC, that is International North-South Trade Corridor. All these things will cover here. Next is a one-liner question can be asked. Union Tourism Ministry participates in FITUR. What is this FITUR? It is one of the world's largest international travel exhibitions at Madrid. So this FITUR जो होता है, it is an exhibition related to traveling. So हमारा जो tourism ministry है, it is taking part in that exhibition. So it is related to travel. ठीक है? CAQM, again CAQM news. We covered this recently, if you remember. Commission on Air Quality Management for Delhi NCR. Remember? Again the news. So we'll cover it again. So one kind of revision will happen. So CAQM focused on shifting of industries of PNG, cleaner fuel, and use of coal stands completely banned in entire NCR. Because of this pollution, CAQM has taken this decision. So here we will cover the CAQM Act of 2021. Formulation of an adjudicatory body for major ports. Notified, the government has notified adjudicatory body. So here the topic is major ports. So if you study major ports, we have to study a recent act, Major Ports Act of 2021. We'll cover that act. Now side by side we'll cover major ports and minor ports. Who controls major ports? Who controls minor ports? Major port, central government. Minor ports, state government and also central government. Okay, it comes in concurrent. Minor ports. So all these things will cover. Now we'll cover Indian Ports Association. Another related news, it's also news on 19th. A memorandum of agreement signed between IPA, Indian Ports Association, and RIS for setting up a Center for Maritime Economy and Connectivity. So here we'll cover this. Indian Ports Association क्या है? ठीक है? Next topic is one liner again. There is a rising demand for Kewda oil. KEWDA. ये oil क्या है? Now there is a demand for this oil in Odisha, Ganjam district. Now this oil क्या है, कहाँ पे है और GI tag मिला या नहीं? मिला है Kewda oil. So one liner question जो आता है ना state exams में, prelims में. So these are in news. It's available in Down to Earth magazine. Now another study about rare dinosaur eggs found in Narmada Valley show how ancient reptiles shared traits with today's birds. Okay, this is also an environment topic. Fine. So we'll start with sugar sector. Sugar sector, now the news is more than 5,000 lakh metric tons sugarcane produced in sugar season 21-22. So now sugar sector is now self-sufficient with no subsidy. Subsidy is not required. It has become self-sufficient. ठीक है? So here we will cover about sugar industry. Fine. So these are the top sugar producing states in India. You can see these are the sugar producing states. Green color. पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार. नॉर्थ ईस्ट में नहीं है.
इफ यू सी केयरफुली, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इज नॉट देयर, जम्मू कश्मीर इज नॉट देयर, ओके, साउथ में है, जस्ट रिमेंबर दिस मच. प्लस हियर यू कैन सी द टॉप sugarcane producing states. Maharashtra number 1, Uttar Pradesh number 2, Karnataka number 3. Maharashtra, Uttar Pradesh and Karnataka. Fine. So India has emerged as the world's largest producer and consumer of sugar, as well as the second largest exporter of sugar after Brazil. सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? ब्राज़ील करता है. सेकेंड इज इंडिया, बट इंडिया प्रोड्यूसेस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर. रिमेंबर, शुगर कैन इज ए वाटर इंटेंसिव क्रॉप. वाटर इंटेंसिव, ठीक है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप दैट रिमेन्स इन द सॉइल ऑल ईयर लॉन्ग. Temperature 21 to 27 degree with hot and humid climate. No need to remember all this, just remember water intensive crop. ठीक है, rainfall around this much 75 to 100. So loamy soil. ठीक है, India is emerged as the world's largest producer. ठीक है, second largest exporter. Okay, this one you have to remember, Maharashtra, UP and Karnataka. Okay, now the prices of sugarcane are determined by the central government. ठीक है, दैट इज कॉल्ड FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट विल स्टडी दिस इन डिटेल. क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट भी करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी डिटरमिन करता है. ओके, now coming to the fair and remunerative prices, that is FRP. When it comes to sugarcane, see, we know about MSP, right, for all other crops, 23 crops, but when it comes to sugarcane, the name is fair and remunerative prices. The central government announces this price. The central government will announce this price on the recommendation of CACP. This is CACP. CACP, that is Commission for Agricultural Cost and Prices. 2015 में क्वेश्चन, प्रीलिम्स क्वेश्चन came about CACP. CACP क्या करता है? CACP recommend करता है, it recommends to the government about what? About MSP and about FRP, दोनों, about MSP and FRP when it comes to sugar. recommend करता है, फाइनल नहीं करता. फाइनल कौन करता है? गवर्नमेंट फाइनल करता है, बट व्हाट इज दैट बॉडी नेम? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. We have 8 cabinet committees, right, in polity we study. Out of that the cabinet committee on economic affairs final करेगा. तो इनका जो डिसीजन होता है CACP का, it is not binding, they simply advise the government. ठीक है, मोस्टली गवर्नमेंट accepts it, but still then on paper it is not binding. ठीक है, आफ्टर टेकिंग फीडबैक, तो CACP क्या करता है? recommend करता है in consultation with the state governments and after taking feedback from associations of sugar industry. Clear? Now FRP is fixed after taking these factors. ये जो factors है, these factors are taken by FRP. Cost of production of sugarcane. See, the FRP जो है, now what is FRP? Fair and remunerative prices. Can anyone tell me? Same, MSP जो है FRP वही है, but MSP is for food crops, 23 food crops other than sugarcane. sugarcane के लिए FRP है. अगर हार्वेस्ट से पहले प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट विल टेक दैट, विल प्रोक्योर दैट, PROCURE, गवर्नमेंट उस चीज़ को प्रोक्योर करेगा, ठीक है, ताकि लॉसेस ना हो जिसने भी शुगरकेन बनाया है. एट व्हाट प्राइस? एट दिस प्राइस, दिस इज द मिनिमम प्राइस, इससे कम नहीं होगा. द गवर्नमेंट विल प्रोक्योर दिस. ठीक है, ओके. नाउ दिस FRP जो प्राइस डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड्स अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ CACP. तो CACP काम करता है सब. तो CACP जब डिसाइड करता है ये प्राइस, इट टेक्स इनटू अकाउंट सम पैरामीटर्स. दीज आर द पैरामीटर्स.
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना खर्चा हुआ है वो बनाने में, इट विल टेक इनटू अकाउंट. रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न टू द ग्रोअर्स आफ्टर ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स एंड जनरल ट्रेंड ऑफ प्राइसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर टू कंज्यूमर्स एट अ फेयर प्राइस, price at which sugar produced from sugarcane is sold by sugar producers. All these things will be taken into account. No need to remember all these things. ये सब चीज they will take into account while finalizing the FRP. Okay. The FRP is paid. The FRP जो FRP है, the FRP of sugarcane is paid by the sugar factories to the farmers. ठीक है, sugar factories to the farmers. Under the FRP system, the farmers are not required to wait till the end of the season or any other announcement of the profits. इसी FRP पे हो जाएगा. ठीक है, ये प्राइस वो पे करेंगे. Now, commission CACP initially agricultural prices commission बोला जाता था इनको. Now CACP is a statutory body, yes or no? Yes, it is a statutory body. 1985 statutory body है under Ministry of Agriculture. So it is an expert body that recommends the MSPs of notified kharif crops and rabi crops to the Cabinet Committee on Economic Affairs. Cabinet Committee on Economic Affairs को they will recommend, finalize कौन करेगा, कैबिनेट कमेटी करेगा. रिमेंबर, खारिफ और राबी क्रॉप्स को अलग अलग करके वो देता है, ऐसा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में नहीं देता. Separately, it will recommend separately for rabi crops, it will recommend separately for kharif crops. The word is separate. Objectives वही है. However, it is the suggestions are not binding. Suggestions binding नहीं, it is up to the government. Now here who is the government? Cabinet Committee on Economic Affairs. Now who heads the Cabinet Committee on Economic Affairs? Prime Minister. Prime Minister. Prime Minister. ठीक है, okay. So here cabinet committee. So here your static chapter is cabinet committees. There are 8 cabinet committees. There is a chapter in polity, Lakshmikant, you can go through it. Okay. So we'll continue with CACP. CACP का currently 5 people है. Okay. Chairman रहेगा एक. Member secretary, 1 official member, 2 non-official members. They are all nominated by central government. और ये जो 2 non-official members रहते हैं, they are usually representatives of the farming community and have an active association with the farming community. ठीक है? Government sets the MSP on the basis of the recommendation given by this committee. The government here means Cabinet Committee on Economic Affairs. Now currently CACP recommends 23 commodities, MSP for 23 commodities and also FRP, okay, which include 7 grains, 5 pulses, 7 oilseeds, 4 commercial crops. Okay, you can just go through it. 7 oilseeds, 4 commercial crops, 23 commodities till now, not all. Okay. So it submits the recommendations in the form of price policy reports each year. Price policy reports में उसका नाम है price policy reports each year. उसी में ये recommendation जाता है. ठीक है? The report consists of 5 categories: Kharif, Rabi, sugarcane मतलब FRP. Here it is FRP. Rest everywhere it is MSP. The CACP while recommending support prices for a commodity takes a comprehensive overview. सब overview लेता है. It will go through all these parameters we covered now. Then it will decide. Okay. Even the commission also makes surprise visits to the states for on-the-spot assessment of the various constraints that farmers face in marketing their products. सारे problems क्या है, farmers का क्या problem है, everything they will take into account. ठीक है. Now your task is how the MSP is calculated. There is a formula which is a part of static course. Everyone knows it. There is a formula. वो formula आपको एक बार देखना है. Books में available है. ठीक है? Okay. Now this is, as I told, it is done by both center and states. When it comes to sugarcane,
FRP. It is administered by center, that is FRP. Even states also administer sugarcane, that is called SAP, state administered prices. The state advised prices or administered prices are regulated, are announced by key sugarcane. Every state will produce their own thing. Usually it is generally higher than FRP, थोड़ा वो FRP से ज़्यादा है जनरली. तो शुगर कैन की जब बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है. तो यहाँ पे थोड़ा एम्बिग्विटी भी रहती है. पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ऑल्सो कम इन टू प्ले. अगर डिफरेंट गवर्नमेंट्स है सो प्रॉब्लम्स ऑल्सो हैपन. ठीक है, ओके. दिस इज द सेम थिंग. मिनिमम सेलिंग प्राइस MSP फॉर शुगर इज नथिंग बट FRP. ओके. नेक्स्ट टॉपिक, Atal Bhujal Yojana. Just you need to remember the scheme. 1 or 2 questions will come from scheme when it comes to UPSC. But state exams में थोड़ा ज़्यादा schemes questions आता है. ठीक है. So now on 19th January, the National Level Steering Committee reviews the overall progress of Atal Bhujal Yojana. Atal Bhujal Yojana का overall progress review किया है. So we need to know what is Atal Bhujal Yojana. Okay. First of all, it is a सेंट्रल सेक्टर. यू नीड टू रिमेंबर सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विल व्हाट रेगुलेट फंडिंग 100% फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो 100% implementation by central government. When it comes to centrally sponsored scheme, it is shared. Funding will be shared, maybe 50-50, maybe 60-40. But implementation for centrally sponsored scheme is done by state governments. Okay, so it is a central sector scheme. Ministry name is Ministry of Jal Shakti. काम क्या है? अटल भूजल योजना. नाम से ही पता चलता है, to improve ground water management through community participation. 2 keywords you have to remember. Ground water management. Okay. Basically it is for the long term sustainability of groundwater. These things are not required. Capacity building, institutional strengthening, incentivizing the states, these are all part of this scheme. So here one task which I will give you is go for the topic groundwater. We have already covered some topic in our previous current affair class. Central Groundwater Board. Remember, Central Groundwater Board we have already covered, so revise that again. One more task is recent there was a bill, groundwater bill. Just go through that bill. Okay, because till this bill happened we do not have a proper law on groundwater management. So go through this bill, it may be asked in paper. Clear? Okay. So these are the things. Groundwater proper sustainable use of, because groundwater is not, it's not used in a sustainable way, right? किसी को भी ज़रूरत हुआ वो ग्राउंड वाटर बोरिंग कर दिया घर के सामने, राइट? सो क्योंकि प्रॉपर लॉ नहीं है. सो गो थ्रू दैट बिल. ओके. नेक्स्ट न्यूज इज ए एनवायरमेंट न्यूज. दिस इज एन एनवायरमेंट न्यूज. A new plateau type discovered from Maharashtra could prove to be a repository of information to study climate change effects on species survival. अभी क्या हुआ है? A rare low altitude basalt plateau, खास करके जो डेक्कन में होता है, housing 76 species of plants and shrubs from 24 different families is discovered. थाने रीजन पे डिस्कवर हुआ है इन द वेस्टर्न घाट्स. वन ऑफ द 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया. और जो वेस्टर्न घाट्स है, देर आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, उनमें से एक वेस्टर्न घाट्स है. तो वहाँ पे ये चीज़ मिला है. ओके, सो हियर इफ यू सी फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस स्टेटमेंट इज एनफ, बट हियर यू नीड टू ऑल्सो नो व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. So biodiversity hotspots होता क्या है? So it is a environment topic, environment static topic which we cover in biodiversity. We cover this in biodiversity, conventional topic है, and usually dynamic भी होता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहता है. So biodiversity hotspots is a environment topic, biodiversity में आता है. So क्या होता है biodiversity hotspots? These are regions which is a prime location for existence of rich biodiversity. तो 2 चीज़ है, rich biodiversity भी है और extinction का भी threat है.
देयर इज ए हाई चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है बट ऑल्सो फेसेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. तो दो चीज़ है, वन इज रिच बायोडाइवर्सिटी बट ऑल्सो इट फेसेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, दैट वी कॉल इट एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. टू थिंग्स. नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है? दिस कॉन्सेप्ट वॉज कॉइन्ड बाय ए मैन, बाय ए पर्सन, नॉर्मन मायर्स. नॉर्मन मायर्स ने इस कॉन्सेप्ट को पहली दफ़ा यूज़ किया था 1988 में. In 1988 this was the first time the person coined the term. Okay, now अब ये जो biodiversity hotspots है, there should be some criteria. Okay, there should be some criteria. There are two criteria which should be fulfilled to call a area as biodiversity hotspot. These are the two criteria. The area must have 1500 vascular plants as endemic. Endemic होना चाहिए. Endemic means what? Indigenous, endemic. Okay, बाहर का नहीं है. Exotic species means बाहर का. So it has to be endemic, which is to say it must have a high percentage of plant life found nowhere else on the planet. Okay, तो endemic plant species होना चाहिए around 1500. Second is it must have 30% or less of its original natural vegetation in, like it should be threatened. 30% of its original vegetation, natural vegetation has to be threatened. We call it a reach होना चाहिए 1500 प्लस threaten भी होना चाहिए कितना 30% और less. ठीक है. So these two conditions. Now who gave these two conditions? These two conditions was not given by the person here. Norman Myers ने बस इस टर्म को कॉइन किया है. Now these things were brought by Conservation International, a very important NGO, international NGO. Conservation International. So Conservation International is a very important NGO, environmental NGO when it comes to environment topic. Environment topic में when we study these name Conservation International का बहुत सारे schemes है which will come in your current affairs. Okay. So in the world 36 areas qualify as hotspots. 36 एरिया. तो इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, बट वर्ल्ड में 36 एरियाज है जो कि हॉटस्पॉट्स में है. ओके, नाउ आई विल गिव यू अ टास्क. Here we will cover India. I'll give you a task which will cover from world point of view. So these are the biodiversity hotspots with respect to India. These are the areas: Himalayas, Indo-Burma region, Western Ghats, Sundarbans. ये चार एरिया जो है biodiversity hotspots बोला गया है because these four satisfy that two criteria given by Conservation International. Now your work is biodiversity hotspots in world. This is your task. Biodiversity hotspots in world. Continent wise, just type in Google, you will get. कौन सा continent? Just your work is which continent has the highest biodiversity hotspots. It is not India. इंडिया में बस चार ही है. कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा है या फिर कौन से कंटिनेंट में ज़्यादा? इट इज़ योर टास्क, यू नीड टू फाइंड इट आउट. क्लियर? ओके. कंजर्वेशन इंटरेस्ट इन 1987, हेडक्वार्टर्स इन वर्जीनिया. इट इज़ एन NGO विद द गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल. क्लियर? सुंडालैंड में ये सब एरिया आता है, अंडमान निकोबार, मलेशिया, वो पूरा जो एरिया है, फिलीपींस, वहाँ पे आता है सुंडालैंड. ओके, फाइन. हिमालयस में व्हेन यू टॉक अबाउट हिमालयस, इट इज द ईस्टर्न हिमालयस. इट इज द ईस्टर्न हिमालयस, नॉट द वेस्टर्न हिमालयस. इंडो बर्मा पूरा है, वेस्टर्न घाट्स पूरा है एंड सुंदरबंस. क्लियर? अंडमान भी आता है बट इसी में आ जाता है. क्लियर? सो दीज आर द प्लेसेस यू नीड टू रिमेंबर. Okay, one more related topic, that is critical
ecosystem partnership fund. When you go through current affairs, you will find this also. Like, it's a old news, but it is still in news. In a year, you will find 2 to 3 times in environment current affairs. 3 to 4 times you will find CE. That is critical ecosystem partnership fund. So it is a fund. Fine. अगर fund है, so it will give money for the conservation of what? Any area which is very critical, ecosystem which is critical. Critical means endangered or threatened. So nothing but hotspots भी आएगा उसमें. Hotspots will also come, right? First of all, it's a joint program of एक फ्रांस का एक एजेंसी है, no need to remember this name, कंजर्वेशन इंटरनेशनल का, यूरोपियन यूनियन, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जापान, वर्ल्ड बैंक. नाउ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF we have already covered, but I'll tell you again. काम वही है. It will address the threats faced by biodiversity by empowering civil society in developing countries. This is a key word, developing countries. They'll simply add in developing and developed countries. बाकी सब सेम रहेगा. Simply developed countries add कर देंगे, गलत हो जाएगा. So you need to study the keywords also. These names you have to remember: Conservation International, World Bank, Japan, European Union, and GEF. What is GEF? Already discussed in our previous current affair class this month, January, in some initial first week. GEF क्या है? Global Environment Facility. What is Global Environment Facility? पहले बताऊं है क्या? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ फंडिंग मैकेनिज्म. It is a funding mechanism. It was established on the eve of 1992 eve of Rio Summit. ईव ऑफ रियो समिट में ये एस्टेब्लिश हुआ. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड, पहले तो ये वर्ल्ड बैंक का था इनिशियली बाय वर्ल्ड बैंक, बट नाउ इट इज इंडिपेंडेंट. But World Bank acts as the trustee. World Bank acts as the trustee. ठीक है? ओके. नाउ फंडिंग करेगा, एनवायरमेंट के लिए करेगा, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए करेगा. पैसा जो है, फंड जो है, कौन से कन्वेंशन पे जाएगा? It will fund for UNFCCC Framework Convention on Climate Change, UNCBD, UNCCD, Minamata, that is for Mercury, Minamata Convention, और एक है स्टॉकहोम कन्वेंशन. स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हाजार्डियस केमिकल्स. ये पढ़ेंगे हम आगे. स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द ट्रांस बाउंड्री, एक कंट्री टू दूसरे कंट्री जो हाजार्डस केमिकल्स आता है उसको बंद करने के लिए कन्वेंशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन. मीनामेटा है मर्कुरी के लिए, ठीक है. यूएनसीसीडी है डेजर्टिफिकेशन के लिए, टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. सीबीडी है फॉर बायोडाइवर्सिटी. सीसी है क्लाइमेट चेंज. सो पैसा जो आएगा, जो मनी विल कम फ्रॉम, द मनी विल बी यूज्ड इन ऑल दिस कन्वेंशन. सो हियर पेरिस भी आता है, क्योटो प्रोटोकॉल भी आता है, तो ये पैसा यहाँ पे भी आएगा. एनी प्रोजेक्ट्स अंडर दोज टू प्रोटोकॉल्स, एनी प्रोजेक्ट अंडर कार्टेजना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ यूएनसीबीडी. तो इसी कन्वेंशन के अंडर में जो जो प्रोटोकॉल्स या फिर एग्रीमेंट्स है, जीईएफ विल गिव मनी टू देम. तो कहीं ना कहीं जीईएफ इंडिपेंडेंट है, तो दे कांट क्लेम, एनी ऑफ दिस कन्वेंशन कांट क्लेम कि दिस जीईएफ इज ओनली माइन. You can't claim because it is giving to 5 odd conventions.
Okay, now one trick I'll give you. Now GEF also gives money to any projects on ozone. ओजोन प्रोटेक्शन के लिए अगर कुछ प्रोजेक्ट है, इफ GEF wants it can give. Now I tell you or I ask you कि GEF can it give money to projects under Montreal Protocol? Yes or no? Now Montreal Protocol works for ozone protection. Montreal Protocol works for ozone protection. We'll study this. But directly does not give money to Montreal Protocol. ठीक है, it gives money for ozone. Any project you do, you are doing a separate project, not under ozone Montreal Protocol. But in a way, indirectly it helps Montreal Protocol, right? So indirectly this GEF helps this protocol, but directly does not fund to this protocol because it gives only to these 5 conventions. ठीक है? Montreal Protocol has come from which convention? बताओ? Vienna Convention 1985. तो वियना कन्वेंशन पहले हुआ था 1985 में. ये कन्वेंशन किसके लिए है? ओजोन प्रोटेक्शन के लिए. उसके अंडर में एक प्रोटोकॉल हुआ जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सिमिलरली UNFCCC किसके लिए है? क्लाइमेट चेंज के लिए है. उसके अंडर में प्रोटोकॉल आया क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट. UNCBD किसके लिए है? बायोडाइवर्सिटी के लिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. उसके अंदर 2 प्रोटोकॉल है. वन इज कार्टेजना प्रोटोकॉल 2000 एंड वन इज नगोया प्रोटोकॉल 2010. Clear? These are all static part of environment, which we will start covering from Monday. Okay, Tuesday, sorry. समझ में आ गया concept? Now, if I ask you, UNFCCC, ठीक है, can take money from GEF, yes or no? If only if GEF wants. UNFCCC का पर्सनल फंड कौन सा है? ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर करंट अफेयर क्लास ओनली. व्हाट इज द पर्सनल फंड ऑफ UNFCCC? Adaptation fund is not a personal fund. It is a, yes, it is a personal fund, but it is not of UNFCCC. It is of Kyoto Protocol. Green Climate Fund is the personal. Green Climate Fund is the personal fund 2010. ठीक है, कैनकन में हुआ था मेक्सिको. तो ये पर्सनल फंड है किसका? UNFCCC का. बिकॉज they got confused, right? They told you we need a personal fund. Now you told me about adaptation fund. Adaptation fund yes UNFCCC का है, but Paris Agreement cannot take money from here because adaptation fund is personal to only Kyoto Protocol. Only Kyoto Protocol. But Kyoto Protocol comes under UNFCCC. But we can't say कि Paris Agreement can take money from here. No. Because it is only for Kyoto Protocol projects. Clear? Okay. Okay, next topic. वर्कशॉप हैज बीन कंडक्टेड ऑन लिंकिंग चाबहार पोर्ट विथ INSTC. एक वर्कशॉप हो रहा है कि वो चाबहार पोर्ट को लिंक करेंगे INSTC के साथ. दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर. ये दोनों आसपास हैं. बोथ आर डिफरेंट बट इन ए वे इट कैन बी लिंक्ड. नाउ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, Ports and Waterways in association with India Ports Global Limited, they have conducted a workshop कि how to connect or link Chabahar Port with INSTC. ठीक है. Now INSTC क्या है? It is a multimodal transport route linking Indian Ocean to Persian Gulf via Caspian Sea, Iran, Northern Europe to St. Petersburg. ये वो trade route है. I'll show you in the map. पहले तो INSTC क्या है? मुंबई से शुरू होता है. INSTC क्या होता है? देखो ये मुंबई है, ठीक है, दिस इज मुंबई. पहले से क्या होता था? ट्रेड रूट जो था ना, इट वाज थ्रू सुएज कैनल. ऐसे करके घूम के तुम आते थे रशिया.
ऐसे घूम के आते थे सुएज कैनल दे के, ओके गॉट इट। बट INSTC से ट्रेड कॉरिडोर जो कि कनेक्ट करेगा यहां से ईरान दे के यहां आएगा रशिया सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। सो इंडिया, ईरान, रशिया 2000 में साइन किया ये एग्रीमेंट, साइन किया एग्रीमेंट, और साइन किया था कि विल बिल्ड ए कॉरिडोर, विल बिल्ड ए कॉरिडोर टू प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट। मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हाट? डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेल हो सकता है, सी हो सकता है, रोड हो सकता है, ओके। लिंकिंग द इंडियन ओशन एंड द पर्शियन गल्फ टू द कैस्पियन सी वाया ईरान। ईरान के थ्रू यहां पे पहले हम क्या करते थे, इधर से आते थे, वी आर गोइंग थ्रू सुएज कैनल, नाउ विल गो डायरेक्टली थ्रू ईरान, ओके। सो ये एग्रीमेंट किसने साइन किया था? इंडिया, ईरान एंड रशिया तीनों ने साइन किया था, INSTC, रिमेंबर। इट इज ए 7,200 किलोमीटर लॉन्ग रूट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेड कनेक्टिविटी जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ट्रेड विल इंक्रीज, जो जो यहाँ पे आएंगे उनका ट्रेड बढ़ेगा। ऑल दोज कंट्रीज विच कम इन बिटवीन दे विल हैव अ impetus to their trade. So मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बक्कू, बंदर अब्बास, अस्त्राखान, ये सब नाम जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर ईरान, इंडिया एंड रशिया। तो बेसिकली इंडिया से रशिया जाने के लिए इट बिकम्स अ इजी रूट। सो दिस विल सिंक्रोनाइज। अब ये जो है ध्यान से सुनो, ये INSTC है, 2000 में हुआ था। सिमिलरली एक अशकाबत एग्रीमेंट भी हुआ था। सो इट विल इन ए वे गिव इम्पेटस टू द अशकाबत एग्रीमेंट। क्या है अशकाबत एग्रीमेंट? अशकाबत एग्रीमेंट ये है, इट वॉज साइंड बाई, ये भी एक ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट ही है, इट वॉज साइंड बाई इंडिया, ओमन, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान फॉर क्रिएटिंग ए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर। अब देखो, बोथ आर डिफरेंट बट इन अ वे बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। INSTC में कौन कौन है? इंडिया, ईरान, रशिया। अशकाबत में कौन है? इंडिया भी है, ईरान भी है, रशिया है नहीं है। सो दे विल आस्क क्वेश्चंस, which of the following countries are common to Ashgabat agreement and INSTC? इंडिया, ईरान, रशिया यहां पे नहीं है, बाकी काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान यहां पे नहीं है। अंडरस्टूड? So one question they may ask you like this. It means you have read the topic, but you have not followed the way to read. You have read it is very common topic, very common. But question will be asked which are common. Countries कौन सा common है? वहीं पे confuse हो जाओगे, because between the lines नहीं पढ़े थे. So there you will again start using your क्या? Brain. Brain use करोगे ना? Permutation combination लगाओगे. मैप को तुम विजुअलाइज करोगे, विच इज टोटल ऑल टुगेदर डिफरेंट इन योर विजुअलाइजेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज चाबहार पोर्ट? अब उसी के आसपास एक चाबहार पोर्ट भी है, ठीक है। इंडिया क्या कर रहा है? चाबहार पोर्ट में हेल्प कर रहा है टू बिल्ड द चाबहार पोर्ट। इंडिया और ईरान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है टू बिल्ड द चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट कहां पे है? यहां पे, ईरान में, यहां पे, यहां पे चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट जब हो जाएगा तो वेरी इजी हो जाएगा मुंबई टू ईरान ट्रेड के लिए, ठीक है। चाबहार पोर्ट है ईरान में, साउथ ईस्टर्न ईरान में। ये जो है ये गल्फ ऑफ ओमान, एंड ओमान इज अ पार्ट ऑफ अशगाबत एग्रीमेंट। तो अभी चीज मुझे बताओ, क्या अशगाबत एग्रीमेंट, चाबहार पोर्ट, अगेन कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। सो थ्री थिंग्स, चाबहार पोर्ट एक हो गया, अशगाबत एग्रीमेंट हो गया, INSTC हो गया। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू राइट इन योर मेंस। जब GS 2 का जब IR का क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स, सिंपल। सो इट बिकम्स अ गेटवे टू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड बाय ईरान,
इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो इंडिया यहाँ पे है, अफगानिस्तान यहाँ पे है। अब अफगानिस्तान का जो ये ऊपर का पार्ट है ये कहाँ पे टच कर रहा है, पीओके में टच कर रहा है, ठीक है। ये तो है तो वो हमारा ही, लेकिन बट फॉर्मली नहीं है, ठीक है। सो अफगानिस्तान और इंडिया का ट्रेड के लिए दिस बिकम्स ए रूट। इंडिया से आप यहां पे जाओगे, ईरान के साथ आपका, अब इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स है, तो जितना भी हो रहा है इधर बाई एयर हो रहा है। जितना भी ट्रेड हमारा हो रहा है इंडिया और अफगानिस्तान का, इट बिकम्स बाई एयर, यहां से होता है। बिकॉज यहां पे अगर चीजें दोगे तो ये कहीं और जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के थ्रू करोगे तो पाकिस्तान पहले बोलेगा हम तो भूखे हैं, पहले हम खा लेते हैं उनके चक्कर में अफगानिस्तान भूखा हो जाएगा ठीक है। तो बेटर क्या करो, ईरान के साथ जाओ, ऐसे ही। ओके, गॉट इट, ठीक है। तो इट विल गिव ए डायरेक्ट रूट टू अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ वी हैव प्रॉब्लम्स विथ पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इशू चल रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो एक पॉइंट हो गया जब मेंस में लिखोगे। सेकेंड पॉइंट हो गया, अब ये क्या है, यहां पे है चाइना, ठीक है, पाकिस्तान का भाई, बड़ा भाई, हमारा दुश्मन। हमारा तो क्या हिंदी चीनी भाई भाई बोलते हैं ना, हिंदी चीनी भाई भाई। पेंसिल गया पेंसिल अभी नहीं है, पेंसिल का पी भी नहीं है अभी पेंसिल कोई मान नहीं रहा है आजकल। ओके, अभी पाकिस्तान में चाइना ने क्या किया है, चाइना ने एक कॉरिडोर शुरू किया है, दैट इज कॉल्ड सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। वो कॉरिडोर कहां पे है, यहां से शुरू होता है चाइना का, यहां से एक जिनजियांग करके एक प्रोविंस है, यहां से शुरू होता है, ये पूरा यहां से थोड़ा पीओ के पास करके ऐसे ऐसे आके इधर आता है। पूरा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान चाइना कर रहा है, ठीक है, बिकॉज चाइना पाकिस्तान हैज, वो रियल में वो भाई भाई हैं, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना का यहां पे भी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इन्वेस्टमेंट है ना यहाँ पे, हम्बनटोटा जो पोर्ट में, नेपाल में भी इन्वेस्टमेंट है चाइना का। अब यहां पे भी आ गया है, अफ्रीका में भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाइना पूरा कंट्रोल कर रहा है इंडिया को साइड पे। तो अगर हमारा यहाँ पे एक पोर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इंडिया का प्रेजेंस यहाँ पे रहेगा या नहीं, इंडिया विल हैव ए प्रेजेंस हियर। सो इन ए वे दिस विल काउंटर दिस सीपेक, काउंटरिंग चाइना एज सीपेक, ठीक है, एक काउंटर करेगा। प्लस इट विल ऑल्सो गिव ए बूस्ट टू ट्रेड, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होता है, बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट अनदर रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड पाकाफुज। नाम अच्छा है ना, ये एक प्रपोजल है, ट्रेड प्रपोजल है, किसका नाम से क्या, पाकाफुज। पाकाफुज प्रपोजल इज प्रपोज्ड ऑफ 573 रेलवे प्रोजेक्ट। तो रेलवे प्रोजेक्ट दैट विल लिंक उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकेंट थ्रू अफगानिस्तान कैपिटल काबुल एंड पाकिस्तान का नॉर्थ सिटी ऑफ पेशावर। तो उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कनेक्ट करेगा, दैट इज पाकाफुज। ये सच में फुज ना हो जाए, ठीक है। So it will essentially function as the northern branch of CPEC and can be described as NCPEC, ठीक है। CPEC ऐसे आ रहा है ना नीचे, तो ये उस साइड में जा रहा है, नॉर्दर्न ब्रांच ऑफ CPEC, अंडरस्टूड। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। So India might be compelled to recalibrate its strategy if it plans for पाकाफुज रेलवे। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, पाकाफुज भी आ गया, उधर हमारा INSTC भी जा रहा है, तो बड़ा प्रॉब्लम होगा फिर। तो वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंगली,
इट इज ऑल फॉर हंट फॉर बीइंग द ग्लोबल पावर. जिसका ज़्यादा ट्रेड उतना ज़्यादा पैसा. क्लियर? ओके, सो इंडिया हैज़ टू बैलेंस दिस चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत हो रहा है. अब पाकिस्तान में है तो ऑब्वियसली चाइना इन्वेस्ट करेगा उधर, आज नहीं तो कल. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट्स इन फितूर. वर्ड अच्छा है ना. फितूर एक मूवी है ना, कैटरीना कैफ की, पुराना पिक्चर है. सो फितूर क्या है? फितूर का हिंदी मतलब क्या है? हिंदी, बहुत सारे हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स में ये यूज होता है ना. फितूर मतलब क्या है? इंटेंशन. पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, गाने बहुत है. बस तुमको ये याद करना है, टूरिज्म, सिंपली दे विल आस्क क्वेश्चंस, रिसेंटली न्यूज, फितूर है क्या? इट इज नथिंग बट अ इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन. तो टूरिज्म को प्रमोट करता है. यहाँ पे एक एग्जीबिशन हुआ, हमारा टूरिज्म मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट किया. टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए? टू ब्रिंग इट टू द प्री पैंडेमिक लेवल्स. ठीक है. अब फितूर वर्ड ही ऐसा है तो मोस्टली थोड़ा लगता है जम्मू कश्मीर के साइड में होगा, राइट? फितूर वहाँ पे यूज़ करता है ना, तो दिल पुट रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ जम्मू कश्मीर सैफरन. हो सकता है सैफरन, तुम फितूर सैफरन मिक्स करोगे, और जिसने फितूर सिनेमा देखा है वो तो पहले जाएगा वहाँ पे, क्योंकि शूट कश्मीर में हुआ है वो पिक्चर. ओके. इट इज़ द वर्ल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशंस, रिमेंबर. बाकी ये सब जरूरी नहीं है. जस्ट वन काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ, सो यू नीड टू नो हाउ द क्वेश्चन कम्स. ये जो टाइप ऑफ न्यूज है, इसका एक ही स्कोप है क्वेश्चन आने का. रिसेंटली न्यूज, फितूर क्या है? सिंपल. It's very hard to make questions on sentence format when it comes to this topic, only this topic. Okay, fine. Okay, I'll cover one more topic here because one more topic एक मैंने यहाँ से लिया. अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे वर्ड है सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, दिस इज अ टर्म हियर. ठीक है, ये टर्म क्या है? नाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन अ सेपरेट क्वेश्चन. टॉपिक इज एक्सपोर्ट प्रमोशन councils. Simply they will ask, this is called EPC. Simply they will ask, consider the following statements about export promotion councils. If you don't know export promotion council कहाँ से आया है, क्या करता है, और exactly registered कहाँ से है, you can't answer. But if you know, then it becomes a very easy question. Okay, fine. So services export promotion council, first of all Ministry of कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में है. मैंडेटेड दिया गया है, उसको प्रमोट करेगा. क्या प्रमोट करेगा? सर्विसेज सेक्टर के एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा. इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, व्हाट इज इंडिया सर्विस सेक्टर? सर्विस प्रोवाइड, आईटी सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशंस, होटल सर्विसेज, एवरीथिंग जो इंडिया का. तो वो जो सर्विसेज सेक्टर है, ग्लोबली प्रमोट करने के लिए सरकार ने एक एजेंसी तैयार किया है, काउंसिल तैयार किया है. दैट इज कॉल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट. सिर्फ सर्विस. सी वी हैव एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वो तो अलग है. मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, सर्विसेज के लिए है, एग्री के लिए, सबके लिए अलग अलग प्रमोशन काउंसिल है. दे विल प्रमोट दैट पर्टिकुलर कैटेगरी एक्सपोर्ट्स, इट विल प्रमोट. ठीक है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही एनफ है. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? ये तो हो गया एक पार्ट सर्विसेज का. व्हाट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? नाउ दीज आर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जो मेन काम है. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एक्सपोर्टर्स. उस काउंसिल में एक्सपोर्टर्स रहेंगे. दे विल प्रमोट
सेटअप अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट। रजिस्टर होगा इधर सोसाइटी और कंपनीज, और एक कंपनी बन सकती है, वो कंपनी बनेगा तो कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में होगा। अगर सोसाइटी है तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 में होगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 में रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। दे आर रेस्पॉन्सिबल प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज। इट कैन बी एग्री, इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग, इट कैन बी सर्विसेज। अभी हमने सर्विसेज के बारे में पढ़ा, सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है। नो नीड टू गो इन डिटेल, जस्ट रिमेंबर दीज आर डन लाइक दिस। ईपीसीज, उनका मीटिंग होता है, मैंडेटरी ऑडिटिंग होगा, ठीक है। रिव्यू रिपोर्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द काउंसिल आर लेड इन द पार्लियामेंट विथ एनुअल रिपोर्ट। दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट। यू मे थिंक पार्लियामेंट में क्यों आएगा, दीज आर नथिंग टू डू विथ पॉलिटी लक्ष्मीकांत, हमने तो वहां पे पढ़ा नहीं एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के बारे में, बट यस उनका भी रिपोर्ट पार्लियामेंट पे ले डाउन होता है। द रिव्यू रिपोर्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस, उनका जो परफॉर्मेंस है दे आर लेड डाउन इन द पार्लियामेंट विद द एनुअल रिपोर्ट ईच ईयर, ठीक है। ओके, next topic is the again like redundant topic we have covered in January 9th 10th, so you can cover again, you can go to 9th and 10th topic. CAQM is again in news, again this month में 10 दिन के अंदर 2 बार न्यूज में आ चुका है। January 9th एंड 10th एक साथ मैंने जो कवर किया था वहां पे CAQM टॉपिक है। Now CAQM has focused on shifting of industries to PNG, cleaner fuels and use of coal stands completely banned in entire NCR. CAQM is Commission for Air Quality Management. It has come from an act, that is Commission of Air Quality Management Act of 2021. So these all we have covered again. 2021 एक्ट में हुआ था, स्टैट्यूटरी बॉडी है। बिफोर दिस EPCA वाज वर्किंग, दैट इज एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, EPCA। EPCA इज ए सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में बोला कि EPCA हैज टू बी फॉर्म्ड। इट इज ए सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी। अभी वो डिसॉल्व हो गया है बिकॉज नाउ इट इज CAQM, ओके। It will supersede bodies such as central and state pollution boards of Delhi, Punjab, Haryana, UP and Rajasthan. उनका जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है सब, इसका डिसीजन हमेशा ऊपर रहेगा। इट विल सुपरसीड ओनली फॉर दीज 5। सी EPCA was only for Delhi NCR. Now CAQM is for all these states, Delhi, Punjab, Haryana, UP, राजस्थान। काम क्या करेगा, इट विल इश्यू डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन, क्योंकि एयर पॉल्यूशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, सो दे विल इश्यू डायरेक्शन। दे विल आल्सो एंटरटेन कंप्लेंट्स, दे विल एंटरटेन कंप्लेंट्स। पैरामीटर ले डाउन करेंगे। अभी ये एक पैरामीटर ही तो है न्यूज में जो बोला है कि कोल स्टैंड्स हैज टू बी बैंड, इट इज अ पैरामीटर, दे लेड अ स्टैंडर्ड, इट हैज टू बी डन। इफ यू आर वायोलेटिंग इट, ठीक है, सो दे कैन हैव पावर टू शट डाउन सच यूनिट्स, shut down such units if you are violating. Powers to overrule direction issued by state government. State government, ये सब state government, सी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, अगर कोई state government इनमें से if it is issuing some direction, CAQM has the power to overrule that, supersede कर सकता है वो decision, but only for these 5 states. These are all mentioned in the CAQM Act of 2021. चेयरपर्सन कौन होगा, रैंक ऑफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, 3 years और 70 years। बाकी दे विल हैव एक्सपर्ट्स फ्रॉम CPCB से, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसरो से भी, बिकॉज रिमोट सेंसिंग भी होता है, ओके। सिविल सोसाइटी ऑल्सो फ्रॉम टेरी, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी में काम कर रहे हैं। इट इज एन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ओके। So question,
जल्दी जल्दी कर लेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. Statutory body to coordinate and diversify efforts to improve air quality in only Delhi. Wrong, because it is more 5 states also. It replaces the 22-year-old EPCA. Correct. All appeals against the commission order will be heard by NGT. Correct or wrong? Yes. Now this fact is written in CAQM Act. NGT को जाएगा appeal. CAQM जो suppose कोई complaint आ गया and the CAQM gave a verdict. Okay. Now if you are not okay with it, you can do a appeal to NGT. You have to go to NGT. Okay. They will put High Court. No, in the act it is mentioned the appeal should go to NGT. Okay. Next question. In case of any conflict, the orders of this commission shall prevail over the state governments of this. Conflict अगर हो रहा है तो इसका ऑर्डर बाकी के स्टेट, बाकी मतलब only these 5. You have to remember these 5 names: Delhi, Punjab, Haryana, UP, Rajasthan, and CPCB also. Central Pollution Control Board. Central Pollution Control Board came from which act? Which act? It has powers from both Water Act and Air Act. Okay, but it came from which act? First, Water Act of 1974 and Air Act of 1981. ठीक है? It came from the Water Act, but it also has been given powers from the Air Act also. ठीक है? The commission can issue directions which will be binding on the concerned person or authority. Yes, direction issue करेगा, it is binding. It is binding, okay. But yes, appeal mechanism is there, but yes, it is binding. So the term here is binding. You may feel कि commission has no powers of very binding. Usually the commissions are advisory in nature. Other commissions in polity we read, but this commission directions will be binding. You have to follow it. It is mentioned in the CAQM Act of 2021. Clear? Next, the appointment of chairperson and members of this commission will be done by the central government through a selection committee headed by the Ministry of Environment. Correct. The commission will have members from ISRO. Yes, we studied right now. It will have members from ISRO, it will have members from TERI, it will have members from CPCB. Subs members, like the members will be there. Okay. The commission may appoint representatives from certain ministries as associate members. Yes, all the 3 are correct. It also consists of ex officio members from ISRO, CPCB and also NITI Aayog. Remember, also from NITI Aayog. NITI Aayog से भी members रहेंगे. Okay. The commission may impose and collect environment compensation from farmers causing air pollution by stubble burning. Now, this point you may feel it is a wrong statement. Because you will feel, how can a commission has power to collect environment compensation, that too from farmers who are doing stubble burning? But it is correct statement because it is mentioned in the act. It is mentioned in the act. ठीक है? It is mandatory for the commission to maintain proper accounts as prescribed by the central government in consultation with CAG. Correct or wrong? Now CAG comes. It is correct. It is mentioned in the law. So CAG also has been given the consultation power. It is mandatory for the commission. The commission has to maintain proper accounts. How they will maintain? As per the rules given by central government, but in consultation with the CAG. It is also a correct statement mentioned in CAQM Act of 2021. ठीक है? Next. Okay. Now next news. Formulation of an adjudicatory board for major ports is notified. Yesterday 19th June में adjudicatory board notify हो गया. किसके लिए? Major ports के लिए. Now first of all topic, एक news से how to select the topics for prelims and mains also. इधर एक mains का question भी आएगा, but first we'll do the prelims part. So the topic is major ports. Number 1. Now when you study major ports, you also need to know what are minor ports. ठीक है? Who handles the major ports? Central government या state government will study that. Same thing for minor ports. Now major ports का तीसरा current affair ये है, the Major Ports Authorities Act of 2021 recently in news. एक ओल्ड एक्ट था 1963 का एक्ट, that got replaced by
मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट ऑफ 2021. ओके, नाउ इसी एक्ट में 2021 में जब ये एक्ट आया, इसी एक्ट में वन पॉइंट वाज देयर हैज टू बी अ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडजुकेटरी बोर्ड. आज हुआ है 2021 में रूल एक्ट में आ गया कि देयर हैज टू बी फॉर्मुलेशन ऑफ एडजुडिकेटरी बोर्ड अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो. अब ये वही चीज कल हुआ है न्यूज में. सो दिस एक्ट बिकम्स अ करंट अफेयर, राइट? इट्स वेरी ऑब्वियस, इट बिकम्स अ करंट अफेयर. यू कांट से इट इज अ 2021 एक्ट, तो पुराना नहीं पढ़ूंगा. ये वही से तो आया है. दिस एडजुडिकेटरी बोर्ड इज देयर इन दिस एक्ट ओनली. विल कम टू दैट. नाउ दिस एडजुडिकेटरी बोर्ड will consist of a presiding officer रहेगा and 2 members रहेंगे. 1 presiding officers and 2 members. The presiding officer कौन रहेगा? Retired judge of a Supreme Court of India or retired chief justice of High Court. Recently in APPCS one question came regarding NHRC 2019 Act regarding सुप्रीम कोर्ट का एक जज कैन बी सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन आया था या नहीं? सिमिलरली यू कैन एक्सपेक्ट दिस, बट इट इज 2021, वेरी रिसेंट. अगर 2019 का क्वेश्चन 2022 में आ सकता है, सो 2021 का क्वेश्चन नहीं आ सकता. फाइन. सो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकता है किसका? हाई कोर्ट का. रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, retired chief judge of Supreme Court, and 2 members shall either be retired chief secretary of a state government or a retired secretary of government of India. ठीक है? So retired judge of Supreme Court or retired judge of High Court. ये हो गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर. बाकी जो 2 मेंबर्स हैं वहां पे इधर भी रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी और ए रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेंटर. सो हियर वन वर्ड इज कॉमन, दैट इज रिटायर्ड. वन वर्ड इज कॉमन, सब में रिटायर्ड है. ठीक है? अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? दिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड जो मेंबर्स 2 मेंबर्स है उसका अपॉइंटमेंट होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमिटी. कमिटी रहेगा जो कि रिकमेंड करेगा. सिलेक्शन कमिटी में कौन रहेगा? चीफ जस्टिस. यहां पे रिटायर्ड नहीं है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी. इफ ही इज नॉट देयर ही कैन नॉमिनेट समवन. सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, डीओपीटी का सेक्रेटरी, एंड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग. हर मिनिस्टर का एक सेक्रेटरी रहता है, इज एन आईएएस ऑफिसर. ओके, तो सिलेक्शन कमिटी में 2 सेक्रेटरी रहेंगे, एक है डीओपीटी का और एक है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का. और कौन रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट रिटायर्ड, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी. ये सिलेक्ट करेंगे एंड दे विल गिव इट टू द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट विल फाइनली डिसाइड हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द 2 मेंबर्स. क्लियर? सो कंपोजिशन ऑफ एडजुडिकेटरी बोर्ड फॉर मेजर पोर्ट्स हो गया. नाउ विल स्टडी ये बोर्ड आया कहां से. इट केम फ्रॉम द एक्ट ऑफ 2021. नाउ मेजर पोर्ट्स एक्ट ऑफ 2021. मेजर पोर्ट्स एक्ट ऑफ 2021. It aims to provide for the regulation, operation, planning of major ports in India. तो ये जो एक्ट है इट केटर्स टू ओनली मेजर पोर्ट्स. आई टेल यू व्हाट इज मेजर पोर्ट्स. उसका कंट्रोल, मैनेजमेंट, एवरीथिंग. सो इट रिप्लेस्ड द प्रीवियस एक्ट. देयर वाज अ प्रीवियस एक्ट ऑफ 1963 एक्ट. इट रिप्लेस्ड दैट. नाउ इसी एक्ट में फर्स्ट पॉइंट वाज अ बोर्ड फॉर मेजर पोर्ट अथॉरिटी रहेगा. एक बोर्ड रहेगा. 2 चीज रहेगा, एक बोर्ड रहेगा अथॉरिटी बोर्ड, एक बोर्ड रहेगा एडजुडिकेटरी बोर्ड. ये हो चुका है, ये आज हुआ है. ठीक है? एक रहेगा बोर्ड रहेगा जो कि पूरा मैनेज करेगा, एक होगा एडजुडिकेटरी जो कि डिस्प्यूट सॉल्व करेगा. क्लियर? ए बोर्ड फॉर मेजर पोर्ट अथॉरिटी टू बी क्रिएटेड फॉर ईच मेजर पोर्ट. जितना भी मेजर पोर्ट्स है, दीज आर द 12 मेजर पोर्ट्स व्हिच कम्स अंडर दिस एक्ट. ओके, चेन्नई, कोचिन, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, जीएनपीटी, मोरमुगांव. अभी ये भी न्यूज़ में था, आईएनएस मोरमुगांव न्यूज़ में था.
दिस वन एन्नोर, ये सब विशाखापट्टनम, पारादीप, पारादीप इज इन उड़ीसा, कोलकाता, एवरीथिंग इंक्लूडिंग हल्दिया, तो ये सब मेजर पोर्ट में आता है. रिमेंबर पोर्ट ब्लेयर भी मेजर पोर्ट है, पर वो नहीं आता इसमें. एक्सेप्ट फॉर पोर्ट ब्लेयर ऑल द 12 मेजर पोर्ट्स कम अंडर द बिल. बिल मतलब दिस एक्ट, इट्स एन एक्ट नाउ. क्लियर? नाउ ये जो बोर्ड रहेगा, सो ईच मेजर पोर्ट विल हैव ए बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट ऑथोरिटी. पहले क्या था? पोर्ट ट्रस्ट था. 1963 एक्ट में इट वाज पोर्ट ट्रस्ट, उसको रिप्लेस कर दिया ये ऑथोरिटी. नाउ all the now the composition of this authority will be selected by central government, but who will be the members? Representatives of state government, जहाँ पे वो major port situated है, in the state where the major port is situated, तो someone from there, state government से, someone from Ministry of Railways, Ministry of Defence and Customs, Department of Revenue. Department of Revenue किसके, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. A government nominee member, a member representing the employees of the major port authority. ये सब this authority के member होंगे. You have to remember. Railways, state government, Department of Revenue, Defence, a government nominee, and a member and an employee of the major port authority. ये सब रहेंगे इसी बोर्ड पे. Okay? Now, this is in news. हाँ? ये बोर्ड अलग, देखो इसी एक्ट के अंदर में है, बट इट केम इन टू बिंग येस्टरडे. इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड कि वी विल ब्रिंग, बट येस्टरडे इट वॉज ब्रॉट. विच वन? दिस वॉज नॉट देयर. इट वॉज प्रीवियसली पोर्ट ट्रस्ट. पोर्ट ट्रस्ट को रिप्लेस किया. दिस वॉज नॉट देयर बिफोर इन 1963. Adjudicatory board was not there. This one also not there. What was there? It was a port trust था. Port trust को हटा के अभी board of major port authority आ गया, plus one more board is adjudicatory board. Adjudicatory means it has been proposed to look into disputes between ports and public PPP partnership. में जो problem होगा port के बीच में और private के बीच में जो problem होगा, it will be solved by adjudicatory board, and it will also give some review. पीपीपी प्रोजेक्ट्स में होता है ना, एवरी पोर्ट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होता है, तो एनी प्रॉब्लम हुआ ये सब करेगा. नाउ दिस इज इन न्यूज. एडजुडिकेटरी बोर्ड, इट वाज फॉर्मुलेटेड ऑन 19th January yesterday. गॉट इट? तो दीज आर द 12 पोर्ट्स. इन 2020 वन मोर न्यूज, द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ कंट्रीज 13th मेजर पोर्ट at Vadwan in Maharashtra. Just remember the name for exams like state exams or normal banking exams. Vadwan 13th major port. ठीक है? Understood? How to take the news. Okay, this is how you have to do current affairs in your self study. See, current affairs में always try to the point is, हम क्या करते हैं ना, हम current affairs जब पढ़ते हैं, we only stick to that news. थोड़ा डिटेलिंग चाहिए. So डिटेलिंग में क्या होता है? Course is getting covered. Course is getting covered. These are all part of governance. Current affair governance. ये क्या है? Law. Governance का part है. Okay? You have something ना, governance syllabus में देखते हो. यही तो है सब governance. यू से सर अलग से गवर्नेंस के पढ़ाओ, वो तो पढ़ा लेंगे, लेकिन रियल गवर्नेंस यही है जो करंट अफेयर के थ्रू होता है. सी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी, ये तीन को छोड़ के बाकी सब करंट अफेयर में आता है मोस्टली. एनवायरमेंट 50% स्टैटिक, 50% करंट अफेयर. IR कैन बी टोटली डन फ्रॉम करंट अफेयर्स. IR का जो सब्जेक्ट है, इट कैन बी टोटली डन फ्रॉम करंट अफेयर्स. साइंस एंड टेक इज नथिंग बट करंट. गवर्नेंस जो करंट में है, लॉज आता है, बिल्स आता है, सब वही तो है गवर्नेंस. थोड़ा कुछ 10-15% है जो कि स्टैटिक का है.
सो इट इज मोस्टली स्टैटिक ओरिएंटेड एग्जाम. ओके, हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं लेकिन हम एक्चुअली में तो स्टैटिक कर रहे हैं. यहाँ पे करंट से न्यूज लेते हैं, बट वी गो टू द स्टैटिक पार्ट. दिस इज करंट अफेयर्स, द न्यूज इज करंट अफेयर्स, बट वी डिड द बिल. द बिल इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ गवर्नेंस सिलेबस. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ मेजर पोर्ट एंड व्हाट इज अ माइनर पोर्ट? मेजर पोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर पोर्ट का डेफिनेशन कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है. मेजर एंड माइनर आर डिस्टिंग्विश्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी. कैपेसिटी के हिसाब से मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स आर डिवाइडेड. कैपेसिटी, in general any port with larger facilities and equipment capable of discharging over 10 lakh metric tons of cargo per month, not per year, will be considered as a major port. तो कैपेसिटी कितना है? मोर देन 10 लाख पर मंथ कार्गो का. तो लेस देन 10 लाख माइनर पोर्ट किया जाएगा. मेजर पोर्ट्स, नाउ वी हैव टू कनेक्ट विद पॉलिटी. 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में आता है मेजर पोर्ट, यूनियन लिस्ट. माइनर पोर्ट, कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट मतलब स्टेट ऑल्सो हैज पावर, सेंटर ऑल्सो हैज पावर माइनर पोर्ट्स में. ठीक है. और माइनर पोर्ट्स कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट. सो ऑल द माइनर पोर्ट्स आर गवर्न्ड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट. मोस्टली ऑल स्टेट्स हैव देयर ओन लॉज रिलेटेड टू माइनर पोर्ट्स, बट सेंटर हैज ऑल्सो पावर बिकॉज इट कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट. मेजर पोर्ट्स आर अंडर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इंडिया, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग. मेजर पोर्ट्स आर मेंशन्ड इन, नाउ देयर आर 2 एक्ट्स. one is 1963 act. It is replaced by 2021 act. That is the Major Ports Act of 2021 recently. Another old act is there, that is ब्रिटिश टाइम से, इंडियन पोर्ट एक्ट ऑफ 1908. यहां पे मेजर पोर्ट्स आर मेंशन्ड. मेजर पोर्ट्स का जो डेफिनेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, दिस इज मेंशन्ड इन 1908 एक्ट. 2021 एक्ट और 1963 एक्ट डील्स विद द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन. एडजुडिकेटरी बोर्ड, अथॉरिटी बोर्ड, वो सब बाद में आया. 1908 में major ports are mentioned here, in which the central government by notification or by law declare कर सकता है this port is a major port. By which law? 1908 law, Indian Port Act of 1908. So there are 2 acts. 2021 you have to remember for current affairs. 1908 no need to go in detail. Just remember, central government invokes the 1908 Indian Ports Act to declare some port as a major port. That's it. For example, ये 12 पोर्ट है मेजर पोर्ट्स. किसने डिक्लेयर किया है? These 12 ports are declared by whom? By center. By invoking the 1908 Act. समझ में आया? 1908 एक्ट. सो रिमेंबर दिस 2 एक्ट्स. क्लियर? ओके. नाउ देयर इज अनदर न्यूज रिलेटेड टू दिस इन बिजनेस लाइन. एक 2021 जून 29 में आया था. वी नीड अ नेशनल पॉलिसी ऑन पोर्ट्स. नाउ दिस बिकम्स ए पोर्ट क्वेश्चन फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. यू हैव एन ऑप्शन ना सिलेबस में, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, आ सकता है क्वेश्चन. Do we need a national policy? We don't have a national policy on ports as of now. Do we need? लिखना है 150 वर्ड में. So we need a national policy on ports. A string of large, medium, small ports along the coast will create a competitive port services market. अब the thing is, तुमको पता चल गया है मेजर पोर्ट्स सिर्फ 13 है
उसमें सेंटर का रूल है, स्टेट का नहीं है। स्टेट माइनर पोर्ट्स में करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक द पॉइंट इज अ स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव एवरीथिंग। ये डिवीजन क्यों, वाई टू ब्रिंग डिवीजन, वही चीज इसमें लिखा है। बिकॉज इफ यू सी फॉरेन कंट्रीज, उनका कोई डिवीजन नहीं है पोर्ट्स को लेके, दे डोंट हैव मच डिवीजन। विल सी द एनालिसिस हियर। सी इंडिया कोस्ट लाइन है 7517 का कोस्ट लाइन है, और आर्टिकल 246 जो सेंटर स्टेट रिलेशंस का पार्ट है, आर्टिकल 246 confers exclusive powers to make laws with respect to the matters enumerated in the union list। ठीक है, और यूनियन लिस्ट में क्या आता है, क्या आता है, मेजर पोर्ट्स आता है, अभी कवर किया ना, मेजर पोर्ट्स आता है। तो मेजर पोर्ट्स यूनियन लिस्ट में आता है, एंट्री 27। नाउ ऑल अदर पोर्ट्स फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी है बट मोस्टली द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज कंकरेंट लिस्ट में है। Now, major and non-major ports. The Union government under the Indian Ports Act of 1908, don't write here 2021 Act, declares a port as major port. They'll simply give you, because 2021 is in news, they'll simply edit this and write the government, central government declares a port as a major port under the recent Act of 2021. It will be a wrong statement. Okay? But there is no mention in the act on the qualifying conditions criteria to declare. This is the major drawback. सरकार को अगर लगेगा सरकार डिक्लेयर कर देगा, लेकिन what are the qualifications? So we need a policy where we can write the qualification. These are the qualifications. In the national policy on ports, we can write the qualifications because there is yet no qualifications. Okay. Now some examples you can give. You can see Deen Dayal port in Kandla, a major port. It handled 123 million tons of cargo in 2020, whereas Mundra port, a non-major port in the same state, handled 137 million tons in the same period. देखो, now you are saying 10 lakh, less than 10 lakh. Okay. मेजर पोर्ट उसी स्टेट में 123 मिलियंस कर रहा है, दीन दयाल पोर्ट कांडला पे। मुंद्रा पोर्ट 137 कर रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट ए मेजर पोर्ट। व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव एनी क्राइटेरिया मेंशन्ड। वी नीड सम पैरामीटर्स, राइट? वी नीड सम पैरामीटर्स। मंथली कितना हो रहा है, एनुअली कितना हो रहा है, वी नीड सम पैरामीटर्स, प्रॉपर 5 to 7 पैरामीटर्स व्हिच यू डोंट हैव। The center cannot declare Mundra as a major because that would bring the port under central jurisdiction. तो ये सब ambiguity होता है. So you have to write center versus state ambiguity. Similarly और एक example है. Okay, no need to give all these examples in your mains paper. Just write the point, give one example. That's it. In Indian context, declaration of port as a major port would mean that the ownership, control and management of that port shall exclusively fall under the central government. Whereas maritime state governments have the power to develop non-major ports either directly or by granting concession to private terminal operators. So here becomes a prelim statement. State government has the right to develop minor ports or non-major ports. ये तो एक है, डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन ऑल्सो बाय ग्रांटिंग कंसेशन इन प्राइवेट टर्मिनल ऑपरेटर्स, प्राइवेट ऑपरेटर को भी वो ग्रांट कर सकते हैं कंसेशन, यू कैन डू स्टेट गवर्नमेंट्स. क्लियर? इट बिकम्स अ प्रीलिम स्टेटमेंट. बट प्रॉब्लम क्या है? सो तो प्राइवेट को अगर दे रहे हो तुम, तो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट इंटरफेरेंस रह रहा है. ठीक है, प्राइवेट इंटरफेरेंस रह रहा है. सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. That is also not a good thing. Private रहना चाहिए, but always under the monitoring of center. Now, we have to give some foreign countries dimension. US में कोई categorization ports है ही नहीं. Why to categorize ports? Canada में सिर्फ 4 ports है. In Canada there are 4 ports: corporation ports, Ports Canada Federal System, commission ports with strong degree of autonomy, and large number of public ports on the control of Department of Transport. Divide कर दो. Corporation ports, गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर पोर्ट को रखो जहाँ पे ऑटोनॉमी मिलेगा. डिवाइड कर दो.
सो ऑल ऑस्ट्रेलिया में सी पोर्ट्स आर ओनली ए स्टेट मैटर बिकॉज इट इज इन स्टेट, सो एवरी स्टेट विल हैव देयर ओन थिंग. सो दिस इज बेस्ट थिंग इन ऑस्ट्रेलिया में, जैसे गिव ऑल द पावर टू द स्टेट, दे बिकॉज दे नो बेटर, राइट. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. अभी लेकिन एक अच्छा हो गया है कि 2021, बट यू हैव टू राइट अ पॉजिटिव थिंग ऑल्सो. वी हैव ए एक्ट 2021, वी हैव ए एडजुडिकेटरी बोर्ड, वी हैव ए अथॉरिटी. सो नाउ थिंग्स कैन फॉल इन टू प्लेस बिकॉज वी हैव ए प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल framework now for major ports. Okay, fine. Next MOA, memorandum of agreement was signed between Indian Ports Association and RIS. RIS is Research and Information System for Developing Countries. No need to go in detail, RIS is not important. For setting up a center for maritime economy and connectivity. एक maritime economy और connectivity एक ऑफिस के लिए एक साइन हुआ है इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन एंड RIS के बीच में. नाउ हियर यू नीड टू नो व्हाट इज इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन. इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन इज नथिंग बट फॉर प्रीलिम्स यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 1966 एक एसोसिएशन है, काइंड ऑफ ए सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860. एक सोसाइटी है, काम क्या करेगा? इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ओनली मेजर पोर्ट्स. इन द पेपर और इन द एग्जाम दे कैन राइट इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन काम करता है फॉर बोथ मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स. रॉन्ग, इट इज फॉर ओनली मेजर पोर्ट्स नॉट माइनर पोर्ट्स. और मेजर पोर्ट्स किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज. सो दिस एसोसिएशन कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में आ चुका है एंड इट इज प्लेइंग एज ए थिंक टैंक. आइडिया देता है, इट गिव्स सम आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज टू बी द थिंक टैंक फॉर द मेजर पोर्ट्स. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग इट इज फॉर द मेजर पोर्ट्स, ताकि एक अल्टीमेट गोल यह है दे हैव टू इंटीग्रेट विद द मैरीटाइम सेक्टर. ओके, नाउ when we study about Indian Ports Association, there was a very recent, not recent, 2018 न्यूज़ में तो है PIB में, लेकिन ये अभी भी है. They will simply ask what is PCS 1X related to. PCS Public Commission Service ये क्या है? PCX 1X ये इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ने किया था, एस्टेब्लिश्ड बाई. किस लिए किया था? इट इज ए क्लाउड बेस्ड न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी. नाउ साइंस एंड टेक टॉपिक. इट इज ए टेक्नोलॉजी विथ यूजर फ्रेंडली इनिशिएटिव. ओके, मतलब सारे जो मैरीटाइम ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आया. It integrates 8 stakeholders beside the 19 existing stakeholders from the maritime trade on a single platform. मतलब it is a platform. Basically, it is a platform. Ease of doing business बढ़ाएगा. It will add services such as notification, workflow, mobile application, track, trace, better user interface, better security, improved everything. Got it? So no need to remember all this. एक सिंगल विंडो इंटरफेस है रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स एंड ऑल, यू विल एबल टू सी देयर. But for whom? For only major ports, because it was established by Indian Ports Association, and Indian Ports Association only covers major ports. PCS 1X. Okay, understood? Next topic is राइजिंग डिमांड फॉर एक पर्टिकुलर ऑयल है जिसका नाम है केवड़ा ऑयल, उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में. इट इज़ फॉर 2 लाख पीपल को ब्लेसिंग जैसा आया है बिकॉज अभी डिमांड बहुत बढ़ा है इसका. तो इट स्मेल्स लाइक ए फॉर्च्यून उनके लिए जो उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट वाले हैं. सी द प्राइस ऑफ ए लीटर ऑफ केवड़ा ऑयल इंक्रीज टू 5 लाख फ्रॉम 4.5 लाख लास्ट ईयर. ठीक है,
दिस इज द केवड़ा ऑयल कैसे बनाते हैं, देखो सीखो और बनाओ। ओके, सी कुछ नहीं जानना है, वन लाइन, इसका मेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट प्रीलिम्स के लिए है। केवड़ा ऑयल क्या है, पहले तो क्या है, कहाँ पे है, दे लास्ट क्यों, उड़ीसा। जीआई टैग है या नहीं, बिल्कुल है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द जीआई। और जीआई टैग को क्या, एक लॉ भी है 1999 एक्ट, जीआई एक्ट ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999, ठीक है ना। हो ये जो गंजाम केवड़ा है, इट इज कॉल्ड पैंडेनस fascicularius, no need to remember. It is, this oil is a steamed distilled from flower of a aromatic screw pine plant, वहां से आता है, डिस्टिलेशन वहीं से होता है, ठीक है। यूज्ड कहाँ होता है ये ऑयल, एज एन एरोमेटिक इन द फूड इंडस्ट्री एंड अदर सेक्टर्स, फूड इंडस्ट्री एंड अदर सेक्टर्स। हाँ, बिरयानी में मिला था ये, श्योर 100%। केवड़ा ऑयल पता है तुमको ये पहले से? अच्छा, बिरयानी में यूज होता है ये, तो फिर इसका मतलब मैं डेली इसको खाता हूँ, पिछले 8 महीने से मैं डेली बिरयानी खा रहा हूँ। आज से सुनो, बिरयानी का नाम केवड़ा बिरयानी। चिकन बिरयानी मत बोलना, कौन सी बिरयानी खा रहे हो, केवड़ा बिरयानी। क्या क्या कोई क्वेश्चन है, सरसों का तेल, देखो तुम्हारे घर पे चीप होता है या नहीं वो मेरे को पता नहीं है, करंट अफेयर में डिमांड बढ़ा है। ठीक है, करंट अफेयर में डिमांड बढ़ा है तो पढ़ना है, ठीक है। चीप होगा क्योंकि तुम्हारा कोई जान पहचान होगा जो कि केवड़ा तेल बना रहा है। ओके, ठीक है। तो ये गंजाम, छत्रपुर, ये सब नाम जरूरी नहीं है, बस उड़ीसा इज एनफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो केवड़ा फ्लावर्स है, फार्मिंग ऑफ केवड़ा फ्लावर्स हैज बीन ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड सिंस द टाइम ऑफ आवर एंसेस्टर्स करके उन्होंने बोला है, ठीक है। आज से बिरयानी बंद। अरे नाम से कुछ होता ना, मैं केवड़ा तेल खा रहा हूँ पिछले 8 महीने से, मुझे लगा मैं कुछ हेल्दी डाइट वाला जो आता है ना तेल, सनफ्लावर डाइट नहीं है, ऑलिव ऑयल से मैं खा रहा हूँ। ओके ओके, कौन है ये? जुरासिक पार्क देखे हो? इसको बड़ा मजा आ रहा है। इसके एज के जैसा करंट अफेयर है ना। जो बच्चों का पिक्चर रहता है, मोगली वोगली जंगल बुक। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मजे ले लो, 4 साल बाद जब एग्जाम दोगे फिर तुमको एक्चुअल रियल चीज पता चलेगा। ओके, रेयर डायनासोर्स एग्स फाउंड इन नर्मदा वैली शो हाउ एंशिएंट रेप्टाइल्स शेयर ट्रेड्स विद टुडेज बर्ड्स। कुछ एग्स मिला है, ठीक है। इन लोगों का भी कुछ काम नहीं है, ये जो स्टडी किए हैं ना इन जो लोग, इनके कोई काम नहीं है, ये कुछ भी लिख देते हैं। अंडे से उनको पता चल गया कि बर्ड्स के साथ सेम है। ओके, मैं कभी इनको मिलूंगा, पूछूंगा तुमको कैसे पता चलता है, तुम्हारे वजह से हम रात भर नहीं सोते हैं, करंट अफेयर बनाते हैं। ओके, ठीक है। रेयर डायनासोर एग्स फ्रॉम फाउंड इन नर्मदा वैली शो हाउ एंशिएंट रेप्टाइल्स शेयर ट्रेड्स विद टुडेज बर्ड्स। ठीक है, अब देखो इसको, फॉसिल्ड एग्स प्रोवाइड क्लूज ऑन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, नेस्टिंग बिहेवियर एंड पेरेंटल केयर। जो फॉसिल एग्स मिला है वहाँ से इनको पता चल गया कि वो पेरेंटल केयर कैसे करते थे, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी कैसे था इनका, नेस्टिंग बिहेवियर कैसा है, इनको सब पता चल गया है। ठीक है, जो हम आजकल 10 पिक्चर देख चुके हैं जुरासिक का, हमको आज तक पता नहीं चला, डायरेक्टर जेम्स कैमरून को भी पता नहीं है, इनको पता चल गया है। ओके, मुझे तो कभी कभी लग रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे स्कैम ही है। बस पैसे लेते कुछ भी छाप दो। लाइव, हाँ इसको एडिट कर देंगे ना। ओके, बस कुछ नहीं है। नर्मदा वैली, इसमें अगर कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है तो वो है नर्मदा वैली। ठीक है, नर्मदा कहाँ पे? नर्मदा रिवर
ठीक है, ट्रिब्यूटरीज और उसका पूरा जो पाथ है, नर्मदा का जो पाथ है, नर्मदा ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है? वो बोले सर मैंने तो कभी गया नहीं वहाँ पे। ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है? कौन से ईस्ट फ्लोइंग में तुम चले गए नर्मदा में? नहीं ना, अच्छा तुम्हारा ईस्ट या मेरा ईस्ट, वैसे पूछ रहे हो क्या? हाँ? तुम्हारा ईस्ट या मेरा ईस्ट, तुम्हारा राइट या मेरा राइट? इट्स अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, अरेबियन सी की तरफ जाता है। ठीक है, कल जाओ तैर के आओ वहाँ से। ठीक है, जिंदा रहे तो आना वापस। ओके, डन। एंड में बेकार न्यूज़ था ना।